Good morning to everyone. This is the sum we will do now. You can see in front of your screen. Roshni and Reshma were working in partnership. 1 minute. Were working in partnership, registered a joint stock company under the name of Happy Limited. So partnership business was there with two partners, Roshni, Reshma. They started a joint stock company named Happy Limited on May 31st, 2016 to take over their existing business. So कभी हुआ है incorporation 31st May. The summarized profit and loss account are given by Happy Limited for the year ending 31st March 2017. Now tell me, if the year is ending on 31st December 2017, when will be the opening date? अगर ईयर एंड 31st मार्च 2017 है तो ईयर बिगिनिंग क्या होगा दिया नहीं है, बट वी कैन मेक आउट. अगर एंड मार्च में हुआ है तो स्टार्ट अप्रैल में हुआ होगा, 1st April 2016, because March will then come in the next year. Correct? When the year starts at April, ends at March. If they have given year ending is March, तो begin हुआ होगा अप्रैल में, 1st April में, and incorporation हुआ है 31st May 2016. तो हमारा स्टार्ट हुआ है, ईयर बिगनिंग है 1st April 2016. April, May, 2 months before incorporation and after incorporation remaining months. So what is there in the profit and loss account? Salary is there. Generally salary is fixed. कोई information नहीं दिया तो time ratio में लेंगे. Interest on debenture. Debenture can be issued only by the company. So it will come in the post period. Then salesman commission, sales ratio. Bad debts, sales ratio. Depreciation, it is fixed. Depreciation is charged timely. Time के हिसाब से होता है, तो it is time ratio. Rent is again fixed. Time के हिसाब से rent पे होता है. If nothing is given, ये भी time ratio रहेगा. Audit fees generally timely पे करते हैं. अगर क्वेश्चन में दिया हो कि it is as per Companies Act, तो ही हम पोस्ट पीरियड में लेंगे, नहीं तो हम इसको भी टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट इज द फंक्शन ऑफ सेल्स. सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट होता है, तो दिस इज ऑल्सो सेल्स रेशियो. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing allocation of expenses and calculation of pre-incorporation and post-incorporation profits after considering the following information. GP ratio was constant throughout the year. This is a information that profit is constant. So then we have depreciation includes rupees 1250 for assets acquired in post-incorporation period. तो total depreciation is 19,250. इसमें 1250 is for the assets purchased in the post period. So ये depreciation directly post में आएगा. Remaining depreciation is for the full year. So remaining we will take in the time ratio. Then we have bad debts recovered amounting to rupees 14,000 for sale made in 2013-14. तो 14,000 का जो bad debts है वो 2013-14 year backdated year तब का है, तो वो तो प्री पीरियड था, फर्म का पीरियड था.
वो प्री पीरियड में आना चाहिए। बीन डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेट्स मेंशन्ड अबाउ, तो 49,000 में 14,000 माइनस किया है, तो हम ऐड करके सेल्स रेशो में माइनस करेंगे। और ये जो 14,000 है ये इनकम है, बैड डेट्स रिकवर होना मतलब क्या, हमने सोचा था कि ये पैसा नहीं मिलेगा, बट देन दिस वाज द सेल्स मेड ऑन 2013-14, बट इन द ईयर 16-17 हमें ये पैसा रिकवर हुआ, इनकम है, बट बिलोंग्स टू द प्री पीरियड बिकॉज ये सेल्स साल पहले हुआ था। So this will come in the income will come in the pre period, and bad debts या इन बाकी bad debts में ये 14,000 माइनस किया है, तो हम अलग अलग बताएंगे बैड डेट्स रिकवर प्री पीरियड में, और ये 49,000 में जो बैड डेट्स रिकवर को माइनस किया था, डिडक्ट किया था, दैट वी विल ऐड बैक and we will divide the bad debts as per sales ratio between pre and post period. Getting the point? क्या हुआ, ये जो बैड डेट्स रिकवर था वो बैड डेट्स में से डिडक्ट किया पीएनएल अकाउंट में, बट हमें तो सब कुछ अलग से बताना है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड कुछ साल पहले का है, तो वो प्री पीरियड में क्रेडिट साइड इनकम साइड में आएगा, एंड 49,000 में जो माइनस किया इनकम अब ऐड कर देंगे, और जो टोटल बैड डेट्स है वो प्री एंड पोस्ट पीरियड में डिवाइड करेंगे, एंड बैड डेट्स इज रिलेटेड टू सेल्स, इसलिए we will divide as per the sales ratio. Then we have total sales were rupees 18 lakh, of which rupees 6 lakh were for April to September. तो अप्रैल टू सितंबर का सेल्स दिया है 6 लाख है, एंड जीपी इज कांस्टेंट, तो सेल्स भी कांस्टेंट उस हिसाब से होगा। तो पहले तो देखेंगे कि 6 लाख अगर अप्रैल टू सितंबर का सेल्स है एंड सेल्स भी इवन है, तो मंथली सेल कितना होगा अप्रैल से सितंबर का। वी विल सी, अगर अप्रैल टू सितंबर का टोटल सेल्स 6 लाख है एंड प्रॉफिट इज कांस्टेंट, मींस सेल्स आल्सो विल बी कांस्टेंट, सो डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स करेंगे, तो अप्रैल से सितंबर का मंथली सेल्स मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर दैट अप्रैल एंड मई इज प्री पीरियड, रिमेनिंग इज पोस्ट पीरियड, एंड बाकी जो भी सेल्स होगा वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि देखो मंथ अप्रैल से मार्च है, बट यहाँ पे 6 लाख कब से कब तक का है, अप्रैल से सितंबर, सो अक्टूबर से मार्च का सेल्स भी देख लेंगे कितना है। ओके, देन देयर इज वन मोर पॉइंट, हैप्पी लिमिटेड had to occupy additional space from 1st October 2016, for which rent was rupees 2,400 per month. जो हैप्पी लिमिटेड है उसने क्या किया, it occupied additional space. कब से additional space मतलब this much space was initially used by Happy Limited, they took one more new space, जगह एक और जगह लिया, उसका एडिशनल रेंट दिया है 2,400 पर मंथ, बट कब से लिया है, अक्टूबर, एंड अक्टूबर मींस पोस्ट पीरियड, 31st May onwards is post period, so अक्टूबर टू मार्च 2,400 इंटू जितने भी मंथ्स है मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द रेंट ऑफ पोस्ट पीरियड। जो रिमेनिंग रेंट है वो जगह का है जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारे पास है। एडिशनल स्पेस तो हमने अक्टूबर में लिया, लेकिन उसके अलावा भी कोई स्पेस है विच इज यूज्ड फॉर द फुल ईयर। गेटिंग द पॉइंट, एडिशनल स्पेस मीन्स व्हाट, न्यू स्पेस विच वाज टेकन ऑन अक्टूबर, लेकिन उससे पहले और उसके बाद भी एक जगह है जो हमने पूरा साल यूज किया है, उसका रेंट कैसे है वो टाइम रेशो से निकाल लेंगे, बट एडिशनल स्पेस का पहले निकालेंगे, वो माइनस करेंगे टोटल रेंट में से, तो रिमेनिंग जो है वो उस जगह का रेंट है जो स्टार्टिंग से बिगिनिंग से एंड तक वी आर यूजिंग, तो वो टाइम रेशो से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट द रेंट ऑफ प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड।
Then audit fees are for audit under the Companies Act. तो ये जो ऑडिट करवाया है ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से किया है एंड कंपनी का पीरियड इज पोस्ट पीरियड. सो दिस ऑडिट फीस विल कम इन द पोस्ट पीरियड. अगर ये पॉइंट नहीं होता so ऑडिट फीस हम टाइम रेशियो में करते, बट ओनली बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ऑडिट फीस विल कम इन द पोस्ट पीरियड. गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि ये पॉइंट है इसलिए ऑडिट फीस जो है पोस्ट पीरियड में आएगा. इफ एनीवन विल गेट कंफ्यूज, हमने पहले सम किया तब ऑडिट फीस को हमने टाइम रेशियो में डिवाइड किया, ये बार क्यों पोस्ट पीरियड में लिखा? बिकॉज ऑफ दिस वन एडिशनल पॉइंट दैट ऑडिट फीस फॉर ऑडिट इज फॉर ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट किया, मतलब दिस ऑडिट फीस बिलोंग्स टू द कंपनी. सो कंपनी का जो भी इनकम एक्सपेंस है सब पोस्ट पीरियड में आएगा. सो विद दिस वी कैन स्टार्ट विद द सम. हैप्पी लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2017. एंड सबसे पहले तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियोज ना, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं. सो टाइम रेशियो में वी वांट ईयर बिगिनिंग ईयर डेट, year beginning date, then we have incorporation date, then we want year end date, year beginning date, incorporation date, year end date. तो ईयर बिगनिंग तो 1 अप्रैल को हुआ है, गिवन इन द क्वेश्चन, नॉट गिवन बट वी हैव फाउंड आउट कि अगर ईयर एंड 31st March 2017 है तो ईयर बिगनिंग उसका 1 साल पहले होगा. देन इनकॉर्पोरेशन इज गिवन 31st May 2016 and year end is given 31st March 2017. So now count the months. April, May, 2 months. Now April, May, June, July, June से स्टार्ट करना पड़ेगा 31st May तक. इट इज फ्री पीरियड. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. इट इज 10 months. तो इसको और छोटा करना है तो 2 के टेबल में एंड 10 is coming in 2 5s are. So 2 1s are 2, 2 5s are 10. So time ratio will be 1:5. Correct? 1:5. Now we will go to the sales ratio. Sales ratio. Sales ratio में let us read that point again. Total sales were rupees 18 lakh, of which rupees 6 lakh were sales for April to September. So total sales कितना है? Let us write down. Total sales is rupees 18 lakhs and sales from April to September. April to September, how many months? जरा count करो. April to September is 6 months. So is rupees 6 lakh. तो per month sales कितना होगा? Divide by 6 month is equal to rupees 1 lakh per month. ये स्टोरी है अप्रैल से सितंबर तक का. अभी रिमेनिंग सेल्स कितना होगा?
रिमेनिंग सेल्स दैट इज अक्टूबर टू मार्च कितना रहेगा? अक्टूबर टू मार्च 2017 का रहेगा हाउ मच? 18 लाख minus 6 lakh, which is your correct, which is 12 lakh. बट ये कितने मंथ्स का सेल है? अक्टूबर टू मार्च, अगेन इज 6 मंथ, डिवाइड बाय 6 किया तो वी गेट हाउ मच पर मंथ? 2 लाख पर मंथ. नाउ प्री एंड पोस्ट करते इधर. प्री हम कैलेंडर बना के लिख भी सकते हर महीने का कितना है, बट क्या जरूरत है? ओनली प्री पीरियड में. दैट वे आल्सो यू कैन डू. जैसे हम हर बार कैलेंडर बनाते हैं उसमें पर मंथ का सेल जो है लिखते हैं, फिर काउंट करते हैं, रेशियो मिल जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं. बट व्हाट आई एम डूइंग हियर इज अप्रैल एंड मई. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का सेल 1 लाख पर मंथ है. तो प्री पीरियड में कौन सा मंथ है? अप्रैल एंड मई. सो उसका कितना है? रुपीज 1 लाख इंटू 2 ना, 2 मंथ्स है ना. तो रिमेनिंग कितना रहेगा? रिमेनिंग विल बी, ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं. 18 लाख में से टोटल सेल्स इज 18 लाख, जिसमें से 2 लाख गया प्री पीरियड में, तो कितना बचता है? 16 लाख. यहाँ पे चाहिए तो आई विल राइट हियर इट इज अप्रैल, जून टू मार्च, जून टू मार्च. हाँ, सो क्या हो जाता है इधर? क्या मिलता है हमें? 2 लाख. इधर मिलता है 16 लाख. कितना जीरो कॉमन है? 5 जीरो. तो इधर मिला 2, इधर मिला 16. नाउ 2 ones are 8s are. So 1:8 is the sales ratio. Got both time ratio also and sales ratio also. Now let us start with the sum. तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करें. ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो है ना 4,50,000. सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन सेल्स रेशियो 1:8. तो 4,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 9. 4,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 9, बिकॉज 1:8 है ना. 1 + 9 इज, सॉरी 1 + 8 इज 9. 1:8 इज द सेल्स रेशियो. हमने अभी निकाला. सी हियर 1:8 इज द सेल्स रेशियो. फ्रैक्शन में करेंगे तो 1 + 8 इज 9. तो 1/9, 8/9. तो 4,50,000 का 1/9 इज 50,000 एंड 8/9 इज 4 lakhs. सो हमें मिल गया. We got this. अब now let us see to salary 1,44,000. कोई एडजस्टमेंट है सैलरी से लेके? There is no adjustment related to salary. So see यहाँ पे सैलरी इज गिवन, बराबर. सैलरीज के लिए कोई एडजस्टमेंट है? 1 by 1 वी विल डू. सैलरी में कोई एडजस्टमेंट है? There is no adjustment related to salary. तो कुछ भी नहीं, तो सैलरी फिक्स होता है टाइम के हिसाब से. सो 1,44,000 को 1:5 रेशियो में करना पड़ेगा. दैट इज टाइम रेशियो. 1,44,000 into 1/6 and 5/6. How much we are getting? 1/6 and so हमें इधर 1,44,000 का 1/6 we are getting this amount 24,000 and 5/6 में हमें मिल रहा है
1,20,000. Now next one, we have interest on debenture. Interest on debenture, debentures कहाँ पे होता है? कंपनी में. So 36,000 interest on debentures will be post. Then what we have, sales commission. कोई एडजस्टमेंट है सेल्स कमीशन में? नहीं है, तो सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो में जाएगा. वन अपॉन 9 एंड 8/9 में 18,000 को डिवाइड करो. 18, you are getting 2,000 and you are getting 16,000. Any confusion here? 18,000 into 1/9, 18,000 into 8/9. You are getting this answer. Now we have bad debts. इसके ऊपर adjustment है. That is bad debts recovered also given. So bad debts recovered 14,000 for sale made in 2013-14 has been deducted from bad debts mentioned above. तो ये 49,000 में 14,000 डिडक्ट हुआ है. तो यहाँ पे जो तो bad debts है, two bad debts, 49,000 में what has been deducted? The 14,000 recovered is deducted. तो दोनों को ऐड करो, 49 + 14, तो हमें एक्चुअल बैड डेट्स मिलेगा. बिकॉज रिकवर्ड को इसमें से माइनस किया. क्यों बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब क्या? हमने सोचा था बैड डेट्स से, पर हमें वो पैसा वापस मिला. 2-3 साल पहले का है, अभी वी आर गेटिंग द मनी. सो हम इसको अलग से बताएंगे, माइनस करके नहीं लिखेंगे, बिकॉज वी हैव टू शो बोथ द पीरियड्स, प्री एंड पोस्ट. तो यहाँ हम इनकम साइड में बताएंगे बैड डेट्स रिकवर, बट ये पुराने टाइम को रिप्रेजेंट करता है. सो इट विल कम इन द प्री, दैट इज 14,000. एंड यहाँ पे जो पहले माइनस किया था, अब उसको ऐड करेंगे. 49,000 plus 14,000 is 63,000. Is it 63,000? 63,000 होता है. तो 63,000 को सेल्स रेशियो में डिवाइड करो. कौन सा रेशियो है? बैड डेट्स इज रिलेटेड टू सेल्स. सो सेल्स रेशियो में डिवाइड करो 63,000 को. हाउ मच यू विल गेट? 7,000 and we will get 56,000. 56,000. क्या किया हमने? टोटल बैड डेट्स, जैसे बैड डेट्स जो ऊपर मेंशन है उसमें बैड डेट्स रिकवर माइनस किया गया है, बट हमें तो प्री पोस्ट साथ में नहीं दिखाना है, अलग दिखाना है. तो जो माइनस किया वो तो इनकम है, प्री पीरियड का इनकम है, प्री में दिखाया, तो माइनस की वजह से हमारा एक्सपेंस बैड डेट्स कम हो गया था. अब उसको ऐड कर दो और उसको बराबर से प्री पोस्ट में डिवाइड करो, ताकि प्री एंड पोस्ट का प्रॉपर प्रॉफिट हमें पता चले. देन वी हैव depreciation 19 to 50, and depreciation says that 1250 is for assets acquired in post incorporation period. So 19,250 में यहाँ पे हम लोग जाएंगे टू डेप्रीसिएशन. टू डेप्रीसिएशन में हम इधर बताएंगे assets acquired in post period is 1250.
सो डायरेक्टली आई विल राइट पोस्ट और मैं बताऊंगी 1250. Now remaining also we have remaining, which is 19,250 minus 1250, which is equal to 18,000. इसको क्या करना है, टाइम रेशो में डिवाइड करना है. टाइम रेशो इज 1/6, 5/6. So 18,000 को 1/6 किया तो इज इट गेटिंग दिस आंसर? No, this will not be there. 18,000 into 1/6 करो, because time ratio is 1:5. 3,000 आ रहे. How much it is coming? 3,000, and remaining is 15,000. Yes, getting this answer 3 and 15. 1/6, 5/6. अलग ही बता दिया. प्री पीरियड पोस्ट पीरियड में जो असेट खरीदा था उसका डेप्रिसिएशन पोस्ट पीरियड में. रिमेनिंग असेट्स फुल ईयर यूज हुआ. सो टाइम रेशियो एंड डेप्रिसिएशन इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम. कितना पीरियड यूज किया, पीरियड कॉस्ट. जितना पीरियड यूज किया उतना पीरियड का वैल्यू कम होगा. सो हम टाइम रेशियो में निकालते. Then what we have? Then we have rent 38,400. इसके पर there is an adjustment, additional space to rent. Let us see how much is the rent. 38,400 and October 2016 additional space 2,400. Let us read that line. Happy Limited had to occupy additional space from 1st October 2016, for which rent was 2,400 per month. So let us go to that working note. It is third working note. Rent is how much? Rent is 38,400. 38,400 is the rent. और हमने additional space कब occupy किया? Additional space was taken or occupied on 1st October 2016. So October से March, how many month? October, November, December, Jan, Feb, March, 6 month. तो 6 month हम 2,400 into 6 कितना रेंट दिया रहेगा? 14,400. ये रेंट कौन सा? अक्टूबर इज विच पीरियड? पोस्ट पीरियड. सो दिस विल कम इन द पोस्ट पीरियड, बिकॉज अक्टूबर मतलब पोस्ट पीरियड है, तभी नया जगह लिया है. तो अभी रिमेनिंग रेंट कितना है? रिमेनिंग रेंट विल बी 38,400 minus 14,400, which is equal to 24,000. Yes. तो ये 24,000 प्री में और पोस्ट में, ये पूरा साल यूज हुआ है. ये जगह पूरा साल यूज हुआ है. सो 24,000 इंटू टाइम रेशियो क्या है? 1/6. पूरा साल के लिए है. 24,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 कितना होता है? 1/6 is how much? 4,000 and remaining is 20. Remaining 20,000 आ रहा है. बट यहाँ पे एक और चीज ऐड करेंगे. वो पहले का ये रेंट भी है, देखो इधर का आ गया. दिस इज ऑल्सो पोस्ट पीरियड. दिस इज ऑल्सो पोस्ट पीरियड 14,400. सो पोस्ट पीरियड में वो भी ऐड कर देंगे. 14,400. चलो एक स्टार मार्क करते हैं. दैट ये ऊपर का ऐड करके लिखा है. कहां से आया है 14,400?
एडिशनल स्पेस जो अक्टूबर में लिया है, सो दिस विल बिकम हाउ मच, 34,400. सो प्री पीरियड में 4,000 एंड पोस्ट पीरियड में 34,400. वर्किंग नोट नंबर 3. सो यहाँ पे वी विल राइट 4,000 and 34,400. This is done. See here. अगर आपको बैड डेट्स का फिर से एक्सप्लेन करना है तो बैड डेट्स के बारे में क्या दिया है, दैट बैड डेट्स का 14,000 है, वो रिकवर्ड हुआ था 2013-14 में बैड डेट्स हुआ था, वो इस साल वापस मिला है. बैड डेट्स रिकवर्ड कभी होता नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता, बट कभी गलती से इट मे बी रिकवर्ड ऑल्सो. इट्स वेरी रेयर थिंग टू हैपन. सो वी हैव सोल्ड इन द, वो बैड डेट्स हुआ था हमें 2013-14 ईयर में, बट ये ईयर 16-17 में वो पैसा मिला है 14,000. तो हमने क्या किया, ये 49,000 जो है ना बैड डेट्स, ये माइनस करके बचा हुआ अमाउंट है. मतलब हमें कुछ तो बैड डेट्स था, उसमें ये जो पैसा रिकवर हुआ वो हमने माइनस किया, खर्चा कम हो जाता है करके, लॉस कम हुआ समझ के. करंट ईयर बैड डेट्स में हमने क्या किया, जो भी बैड डेट्स रिकवर आया वो माइनस कर दिया. तो ये 49,000 माइनस करके वैल्यू है, तो माइनस करके वैल्यू है, तो हमें अगर एग्जैक्ट बैड डेट्स चाहिए तो 49,000 प्लस 14,000 करना पड़ेगा. जब हम ये प्लस करेंगे देन वी विल गेट द एग्जैक्ट बैड डेट्स. एंड बैड डेट्स रिकवर्ड इज द इनकम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है. And this is the bad debts for very like few years ago. तो प्री पीरियड फर्म का पीरियड था, अभी जो आगे फ्यूचर पीरियड है वो कंपनी का पीरियड है. जो पहले था वो फर्म का, इसलिए हमने बैड डेट्स रिकवर्ड को कहाँ लिखा, हमने बैड डेट्स रिकवर्ड को प्री पीरियड में लिखा. एंड यहाँ पे बैड डेट्स निकालते वक्त हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पे ना मैंने माइनस गलती से लिखा, इट इज प्लस 49,000 plus 14,000 which is 63,000. ओके, हमने क्या किया, 49,000 में जो बैड डेट्स रिकवर माइनस किया था वो अभी हमने क्या किया, ऐड कर दिया to get the exact figure of bad debts. So now what is there, रेंट भी हो गया. अभी लास्ट वन, ऑडिट फीस. ऑडिट फीस के लिए there is 6th point. It is for company, it is as per Companies Act. So this 12,000 will come where? It will come in the post period. Correct answer. It will come in the post period. अगर ये point नहीं होता तो time ratio. But because this point is there, what we will do? We'll show this 12,000 in the post period. Correct, 12,000 in the post period. So now देखो कितना इनकम है, कितना प्रॉफिट है देखो, तो 50 plus 14 is 64,000. This is 4 lakhs. Let us see whether प्रॉफिट आ रहे, लॉस आ रहे, क्या आ रहे देखते. मैं अभी के लिए तो यहाँ पे बराबर लिख रही हूँ सेम अमाउंट. अगर डेबिट साइड हैवी है तो आई विल मेक द चेंजेस. सो 24,000 plus 2,000 is how much? 26 plus 7 is 33 plus 3 is 36 plus 4 is 40. 40,000 is the debit side total. तो हमें क्या मिल रहा है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हमारा क्रेडिट साइड इज हैवियर. सो प्री पीरियड के प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं. 64,000 माइनस 40,000 कितना होता है, 24,000 का कैपिटल रिजर्व है. 24,000 का कैपिटल रिजर्व है. नाउ सेम वे
4 लाख में से भी ये सब अमाउंट माइनस करो. 1,20,000, 36,000. How much you are getting? 16,000, 56,000, 1,250, 15,000, 34,400, 12,000 gives us 2,90,650. 4 लाख से माइनस करते तो हमें मिलते करेक्ट आंसर 1,09,350. ये क्या है, लेकिन इसको नीचे लिखना पड़ेगा बिकॉज ये क्या है, पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट है. उसको हम बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट. टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन. ये कैसे मिला? 4 लाख में से माइनस 290,650 we got 1,09,350 which is the post period profit, which is known as net profit. With this sum is done. Thank you very much everyone.